हेलो वीवर्स, वेलकम बैक टू दृष्टिकोण। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये दृष्टिकोण का सीजन 1 चल रहा है, तो चलिए एक नज़र डालते हैं हमारे स्कोर कार्ड पर। तो आज हमारे साथ है टीम डी एंड टीम ई। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि टीम डी और ई के एक एक मैच हो चुके हैं। टीम डी का स्कोर है 49 एंड टीम ई का स्कोर है 49। तो आज का मैच डिसाइडर मैच होगा। जो भी टीम जीतेगी वो फाइनल में जाएगी। टीम डी को जीतने के लिए 54 पॉइंट्स चाहिए एंड टीम ई को भी जीतने के लिए 54 पॉइंट्स चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का दृष्टिकोण, जिसमें हमारा टॉपिक है बैटिंग एंड गैम्बलिंग ऑन स्पोर्ट शुड बी अलाउड एज रेगुलेटेड एंड टैक्सेबल एक्टिविटी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बैटिंग इलीगल है, बट फिर भी होती है। अगर हम इसे रेगुलेटेड और टैक्सेबल वे में करें तो हमारी गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिलता है। बट ऑन द अदर साइड, अगर हम इसे लीगलाइज वे में करते हैं तो इससे हमारा यूथ बर्बाद हो सकता है। तो इसके लिए मैं बुलाना चाहूंगा काजोल और अंशुमान को टू स्पीक फॉर द मोशन। And gambling as a vice cannot be eliminated. Such things will happen even if it's illegal. So instead of turning our back, we should find the solutions. There are some negative impacts I would like to state of illegalizing betting. First is the black market. The complete restriction of betting will send these activities underground and it will broaden the operation of criminal activities. Regulating it will strike straight to the black money circulation, and also ICC has also supported it and said that the illegal funds of these underground bookies are used to fund terrorism and drugs. Second is the match fixing. With betting opportunities going underground, it is harder to oppress the black market and money fixing. Third point is a setback of economy. The FICCI estimated that in 2013 report, the underground illegal activity has pegged up to rupees 3,000 billion. Fourth is increasing of the job opportunities and the employment sector will grow. So it's a win-win situation for the government and consumer. The government will earn the financial benefit from the tax revenue. Thank you. According to the recent report of Law Commission, they recommended the pros and cons of legalizing the betting and gambling activities in India. And in a paragraph, they explicitly mentioned that the pros outweigh the cons. यानी कि सीधी सी बात है, इंडिया का रेवेन्यू डेफिसिट है 6% ऑफ अवर जीडीपी, और गवर्नमेंट उतना रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रही है जितना कि रिक्वायर्ड है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। एंड अकॉर्डिंग टू आईसीसी, इंडिया में अराउंड 30,000 करोड़ का बिजनेस होता है बैटिंग एंड गैम्बलिंग से। तो यदि गवर्नमेंट इस पे टैक्स चार्ज करने लगे तो हमारे पास वेलफेयर स्कीम्स के लिए कितना सारा पैसा आएगा। अभी तो इंडिया का स्पोर्ट्स बजट भी इससे कम है, वो तो सिर्फ 2000 करोड़ ही है। एंड जो अभी तक इंडिया में सिर्फ गैम्बलिंग एक्टिविटी अलाउड है वो है हॉर्स राइडिंग पे, जिसपे गवर्नमेंट चार्ज करती है 28% जीएसटी। और जो हमारे लॉज हैं, वो हमारा एक इम्पॉर्टेंट लॉ है गैम्बलिंग लॉ, जो कि है 1867 का, जो कि बहुत ही आउटडेटेड हो चुका है। तो गवर्नमेंट को और स्ट्रिक्ट लॉज लाने चाहिए जिससे गैम्बलिंग एक्टिविटीज इंडिया में रेगुलेट हो पाए। So now I would like to call Agrini and Gyanendra to speak against the motion. Betting and gambling on sports should be allowed as a regulated and taxable activity. Well, it's a complete no from my side. Are we short of problems that we are inviting new ones? No, right? In India, since the Mahabharata, the practice of gambling has been criticized. A large section of population, especially women, oppose gambling, not only from an ethical point of view, but also because it invariably leads to moral and monetary bankruptcy. Now people will say that take it as a mode of recreation. So let me tell you, people with piles of black money are actually doing it. But before we legalize it, let's not forget, India is a developing nation, where a large section of it still survive on daily wages. They still live on meager meal or two after working hard. How can we forget our youth and their future? We just can't put them in danger for the mere sake of taxes and revenues. Thank you. Everyone wants to make money. Is gambling is the way to get success? No. The reason people gamble is not the lack of alternative, but availability and most importantly, the generous line of credit offers. Sometimes gamblers don't need to deposit money to bet with the gamblers, which make it easier for them to gamble with money they don't have. This is also the main reason wagers get into trouble data situations.
but greed never stops. Thus, legalizing gambling won't eliminate illegal gambling, and the problems get accompanies it. For instance, increased opportunities to gamble may increase the amount of gamblers, and gambling addicts will most likely rise. So, legalizing gambling won't make illegal gambling disappear. So, stop gambling. Thank you. अभी तक आपने हमारे चारों स्पीकर्स के दृष्टिकोण देखे, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे दृष्टिकोण के अगले राउंड से, जिसका नाम है पराक्रम, जहां पे हमारे स्पीकर्स एक दूसरे से सवाल जवाब करेंगे। तो मैं अपने सभी स्पीकर्स को बुलाना चाहूंगा ताकि वे अपने सवाल रखें। तो मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आपने जैसा कहा कि महाभारत के टाइम से बैटिंग और गैम्बलिंग चली आ रही है, लेकिन ये तो चली आ रही है, गवर्नमेंट ने कई चीजों को इलीगल डिक्लेयर किया, लेकिन तो भी ये चीजें होती और इनसे यहाँ जहां तक कि पाया गया है कि बहुत सारा पैसा इसमें लोग लगाते हैं, यानी कि 30,000 करोड़ अप्रोक्स। तो इन चीजों पे गवर्नमेंट क्यों ना टैक्स लगा के इसे सोशल वेलफेयर स्कीम में चलाए? आप इसको रोक तो पा रहे नहीं, तो इसमें टैक्स लगा के सोशल वेलफेयर स्कीम में चलाया जाए। तो मिस्टर अंशुमन, आप चाहते हैं कि जिस तरह महाभारत में स्त्री का अपमान हुआ था और इतनी जनहानि हुई थी, इतने लोगों का मतलब कि ना युद्ध बड़ा हुआ था, तो फिर से आप चाहते हैं ये सब अभी कंटिन्यू रहे? आप अपने टैक्स बचाने के चक्कर में लोगों की इज्जतें निकलवाना चाहते हैं, आपका मतलब ये है मेरे हिसाब से? लोगों की जैसा जो महाभारत के टाइम हुआ वो रिपीट अभी के टाइम से आप बताइए ना, अभी कितना कहना चाह रहे हैं नहीं, चलिए हाँ बिल्कुल सही बात है। चलिए मान लिया चीरहरण नहीं हो रहा है, बट जो लोग हैं जो इतने कैपेबल नहीं है, वो अपने घर वालों के ज्वेलरी है, अपनी प्रॉपर्टी है, उनको सेल करके गैम्बलिंग में पैसा लगाते हैं और वो हारे या जीते उनके लक पे डिपेंड करता है। तो क्या अंशुमन जैसा आपने बोला लगा दें? अंशुमन जैसे आपने बोला कि 30,000 करोड़ रुपीस हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये हम गारंटी नहीं कर सकते कि वो कितने परसेंटेज वाले लोग हैं जो इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनके पास ऑलरेडी बहुत सारा मनी अवेलेबल होता है, लेकिन अगर हम इस चीज को लीगलाइज कर देंगे तो ये चीजें उन सेक्टर को भी अवेलेबल हो जाएगी जो डेली वेजेस पर डिपेंड करते हैं। तो आपको नहीं लगता कि हम उन लोगों को भी इन्वॉल्व करें जो पर डे की इनकम इस चीज में इन्वेस्ट करेंगे? तो इससे तो कितनी सारी हार्मफुल एक्टिविटीज हो सकती हैं, वो अपनी इनकम लगाएंगे, अगर उनकी इनकम खत्म हो गई हो सकता है लक ट्राई। लेकिन आप बोल रहे हैं इनकम लगाएंगे, लेकिन पर्सनल डिस्क्रिप्शन पे है लोगों की, जो वो पैसा कमा रहे हैं उस पे गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकती है कि आप इधर ही इतने पैसे लगाओ। बड़ी बात एक और चीज है कि आपने डेली वेजेस का बोला, तो अभी भी पैसे आप नहीं लगा, लिकर्स और सिगरेट सबसे ज्यादा उसी सेक्टर में बिक रही हैं जो आप बात कर रहे हैं, तो हम वो भी बंद करवा देते हैं, फिर उससे भी तो टैक्स एंड रेवेन्यू आ रहा है। एक पॉइंट हो सकता है, एग्जैक्टली वो भी एक पॉइंट हो सकता है बंद करवाने का। आप स्टॉप कैसे करोगे गैम्बलिंग की लोग पैसा न लाएं? ये तो अब जैसे गांव में बैठे दो लोगों ने बोला कि चल इंडिया जीता, आप उसे कैसे अभी बंद करा सकते हैं? तो गवर्नमेंट उस ब्लैक मार्केट में रेगुलेशन से जो ब्लैक मार्केट में पैसा जा रहा है वो ब्लैक फ्लो सर्कुलेशन रोक सकती है, और इलीगल एक्टिविटीज और अनरेगुलेटेड एक्टिविटीज पे चेक भी कर सकती है, क्योंकि फिर वो मनी ओपन मार्केट में जाएगा और ट्रेसेबल होगा। ओके, आपका क्वेश्चन सही है, लेकिन इससे क्या गारंटी मिलेगी हमको कि हमारे जो प्लेयर्स हैं वो इस बैटिंग रैकेट में इन्वॉल्व नहीं होंगे? आप इसका क्या एश्योरेंस दे सकते हो? ठीक है, हम नहीं कंसीडर कर रहे माइनॉरिटी को, लेकिन हम ये कैसे गारंटी कर सकते हैं कि हमारा प्लेयर इन्वॉल्व नहीं होगा? अभी भी हम देखें तो कितने सारे प्लेयर्स, अराउंड 11 players of Indian team has been involved. They have been involved in this betting racket. They have been banned for around 5 years. उनको उतनी पनिशमेंट मिली, उस टाइम पे भी ये ट्रेसेबल नहीं था, बट दे गॉट ट्रेस। तो हम ये नहीं बोल सकते कि लीगलाइज करने के बाद ये ट्रेसेबल एक्टिविटी हो जाएगी, तो इजी हो जाएगी। करने के बाद, अरे लीगलाइज करने के बाद एक लॉ कमीशन की रिपोर्ट बनेगी, उसमें ये जो मनी आएगा वो पहले ही करने से पहले ही हो जाएगा। आप ये बात की बात कर रही है, मैं पहले की बात बता रही हूँ। और जहां तक आपको लग रहा है कि टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट जिस तरीके से हो रही है, आपको लग रहा है क्या कि ये सारी चीजें इतना इजीली ट्रैक करना आसान होगा? मतलब आई डोंट थिंक सो। विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी आई रियली डोंट थिंक कि हम इतना अश्योरेंस से बोल सकते हैं कि ये सारी चीजें रेगुलेटेड होंगी, ट्रैक कर सकते हैं। बिकॉज इलीगली अगर वो चीज हो रही है तो लीगलाइज हमें क्यों करना है उस चीज को? हम उससे एक मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर सबको इन्वॉल्व कर लेंगे। हाँ, तो मैं वही चीज गवर्नमेंट उस एक्टिविटी को स्टॉप ही नहीं कर पा रही है, तो
आप ये तो बताइए कि ये चीज आप इतने अश्योरेंस से कैसे कह सकते हैं कि इलीगल है? ठीक है, लीगलाइज क्यों नहीं करना है? क्योंकि वो हो रही है, आप अभी भी उसे स्टॉप क्यों नहीं कर पा रही? मैं वही तो पूछ रही अच्छा, हूँ तो आपसे। आप ये कहना चाहती है कि अगर उसको स्टॉप नहीं कर पा रहे हैं, वो इलीगल है, और उसको तो आप उसको लीगल बना के उसको मतलब कि गलत तो सही कर देंगे। एग्जैक्टली एंड लीगल ऐसे तो काजल, फिर अगर आप आपका हाँ, नहीं, आपका ये कहना है मतलब ऐसे तो हम देखें तो ड्रिंक एंड हम्म, ड्राइव करना भी अलाउड नहीं है, बट एक्सीडेंट्स तो हो रहे हैं, लोग ड्रिंक करके ड्राइव कर रहे हैं, तो हम उसको भी लीगलाइज कर देते हैं, उसमें बहुत सारे टैक्सेस लगा देंगे, हाईली इम्पोज टैक्सेस, वो तो एंड अलग उसके बात बाद है, उसमें तो रेवेन्यूज निकाल पर्सनल लेंगे। हार्म नहीं, हो रहा है लोगों का। अगर हम तो गलत इससे चीज भी तो को हार्म हो सही रहा है। करके हम एग्जैक्टली गलत चीज को सही अंशुमन, आप करके हम बताइए। होता है कोई, जो आपने कहा मेंटल है तो हम तो बैन कर नहीं देंगे। यहाँ नहीं फेसबुक, स्मार्टफोन्स को बैन इंस्टाग्राम कर गैम्बलिंग नहीं रही है, करवाता है। ऐसा कैसे? वो फेसबुक, गैम्बलिंग नहीं इंस्टाग्राम हुई है। गैम्बलिंग नहीं आप करवाता है। अगर आप इस चीज को गैम्बलिंग लीगलाइज की बात करेंगे, कीजिए। हम एक्चुअली अगर इस थोड़ा चीज को बेसिक टॉपिक लीगलाइज पे जाके करेंगे, बात कर रहे हैं नहीं कि तो आप मेंटल कह रहे हैं हेल्थ, हार्म है, हेल्थ इशू है। ऐसी तो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे अभी अंशुमन ने बताया मोबाइल we एक्टिविटीज, वो can भी put हार्म कर रही है, वो भी we एडिक्टेड है, can put ड्रग्स, some लिकर, restrictions, such ऑल as we can पर एडिक्टेड, use the pen card. यहाँ पर लीगलाइज सुनिए, है ना। यहाँ पे लॉस ऑफ कैपिटल लीगलाइज है, यहाँ पे ओके लॉस ऑफ ओके हेल्थ है, हाँ, यहाँ मैं पे वही लॉस कह रही ऑफ हूँ आपसे, आप बिल्कुल रिलेशनशिप हो मेरा रहा है ना, यहाँ पॉइंट पे बोल कितने रहे हैं। सारे लॉसेस थैंक एक यू। चीज की वजह से हो रहे हैं। मैं वही तो कह रही हूँ हम कि जब ये गैम्बलिंग लीगलाइज होगी तो ऐसे धड़ल्ले से तो लीगलाइज कर नहीं देंगे कि चलो ठीक है गैम्बलिंग अलाउड हो गई। Restrictions एक रहेंगे, लॉ कमीशन की रिपोर्ट बनेगी, मैंने 145 पेज regulating की body रिपोर्ट पढ़ी है, 2013 में बनी थी, सुप्रीम कोर्ट को उन्हें भेजी भी थी, आप एक बार वो पढ़ना, उसमें बहुत कुछ ओके लिखा है। काजल, आई अप्रिशिएट द थिंग्स दैट यू आर सेइंग, बट हमारे पास जो एक डायरेक्टर जनरल हैं जो सीबीआई में सर्व कर चुके हैं, उन्होंने ये चीज बोली है कि रेगुलेशन ये अश्योर नहीं करता कि हमें जो टैक्स रेवेन्यू है, जो भी हमारी प्रोग्रेस है, वो हमें एज पर द डिमांड वापस मिलेगी। डीमोनेटाइजेशन एंड ऑल दीज थिंग्स, इन सबका जो रेवेन्यू डिमांडेड था वो एग्जैक्टली सेम रेट पे उन्हें नहीं मिला। मतलब फ्रॉड्स कुछ भी अश्योरेंस नहीं देते हैं हमको कि जो जो हमने सोचा है वो एग्जैक्टली गवर्नमेंट को रिटर्न में मिलेगा। देयर विल बी फ्रॉड्स, देयर विल बी लॉट ऑफ एक्टिविटीज जो हमारे अकॉर्डिंग नहीं होगी। हाँ, तो मैं हाँ, या टैक्स एंड रेवेन्यू, मैं मानती हूँ कि बहुत सारे लॉज एंड रेगुलेशंस, आप यही कह रही है ना कि इतने स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं होते, कि टैक्स एंड रेवेन्यू हमारे पास उतना ही आए जितना हम अश्योर कर रहे हैं। मैं वो नहीं कह रही थी, मैं ऐसा कह रही थी कि आपने जो डेली वेजेस की बात बोली थी, लॉ एंड कमीशन पूरा बनेगा, जिससे अभी शराब के बेचने पे भी बहुत सारे लॉज एंड रेगुलेशंस हैं जो फॉलो नहीं भी होते हैं, एंड बहुत सारी हार्मफुल चीजें भी हैं। तो जो ये गैम्बलिंग होगी तो उसमें भी हमारे पास लॉज एंड कमीशन बनेंगे प्रॉपर, कि इनकम के हिसाब से, विनिंग एंड लॉसेस के हिसाब से ही फिर वो करने देंगे। दो टाइप की उन्होंने गैम्बलिंग बताई भी थी, प्रॉपर एंड स्मॉल, ऑन द बेसिस ऑफ इनकम। तो आई थिंक कि ये लीगलाइज होना चाहिए इंस्टेड ऑफ कि हम इसे इलीगल एक्टिविटी रहने दें। और ओके, अगर इलीगल एक्टिविटी को अगर हम चलिए लीगलाइज हम करना है तो आई अपनी थिंक हमें बहस को सारी यहीं पे इलीगल समाप्त करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा, हर चीज के अपने प्रोस एंड कॉन्स दोनों होते हैं। भले ही गैम्बलिंग एंड बेटिंग के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो, बट ये हमारे यूथ की सोशल, मेंटल और इमोशनल हेल्थ को बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। तो अपनी फेवरेट टीम को वोट करने के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम पेज जीएस प्रोडक्शन हाउस को फॉलो कर सकते हैं और अपनी फेवरेट टीम को वोट कर सकते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।